this whole scam or whatever you call irregularities has been not committed by any one person or any one group of persons. It is the whole business. People don't give human names to a scam, but if a human name is to be given to this scam, it is not a Harshad Mehta scam, it is a PV Narasimha Rao scam. बोले मैंने वो जमाने में एटलीस्ट मंदी में 30-35 करोड़ रुपया कमाया होगा बेच के because we knew it was fraud money. स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 500 करोड़ लिए थे और he was not in a position to pay it back. That nobody has understood exactly what all has happened. And everybody has tried to explain the situation in their own fashion. ये साल है 1991. India is experiencing exponential growth because of the new economic policy of 1991, जो पिछले साल ही लॉन्च हुई थी. This was the game changer for the economy, except this guy, who was once the major contributor for the economy. His name was Harshad Shantilal Mehta. The man who paid highest taxes to the government was now struggling to prove his innocence in front of the court. A boy who came to Bombay with only rupees 40 in his pockets ended up becoming one of the most influential person of the Indian stock market. Known as the Big Bull, he single-handedly took the stock market to new highs and then later became the reason for people to lose their hard-earned money. The man who single-handedly pulled off a scam of nearly 5,000 crores, scapegoat for a few, messiah for many, and a fraud for everyone. This is the story of a man whose life went down faster than the stocks he owned. Harshad Mehta, born on July 20, 1954 to a lower middle class family in Ghatkopar, Bombay. His father was a traditional cloth merchant. 10 साल की उम्र से ही he started seeing his father struggling with his health, जिसकी वजह से परिवार रायपुर मूव कर गया. पर वहाँ पे भी उनके पापा शांतिलाल भाई मेहता का धंधा चल नहीं पाया और उन्होंने अपना सारा पैसा उस धंधे में गंवा दिया. His family's condition was so terrible कि घर चलाने के लिए मम्मी को अपने सारे गहने बेचने पड़ गए. And finally, at age 19, he decided to move back to Bombay for a better future. He moves to Bombay with only rupees 40 in his pockets and a lot of dreams. उसको पैसा कमाना था जिससे वो अपनी परिवार की सिचुएशन स्टेबल कर सके और उनको एक अच्छी लाइफ प्रोवाइड कर सके. एंड दस ग्रेजुएशन डेज से ही उसने छोटे मोटे काम करने शुरू कर दिए. हर्षद ट्राइड गेटिंग हिज हैंड्स डर्टी इन अ लॉट ऑफ बिजनेसेस. कभी सीमेंट सप्लाइंग करना तो कभी डायमंड पॉलिशिंग करना. ग्रैंड सक्सेस किसी में भी नहीं मिली. इट टुक हिम 8 years टू लैंड ऑन द प्रोफेशन विच वॉज अबाउट टू चेंज हिज लाइफ, द स्टॉक मार्केट. और जॉब करते करते हर्षद का इंटरेस्ट स्टॉक मार्केट में जागने लगा. ही सॉ द अपॉर्चुनिटी ऑफ मेकिंग मनी वर्क. 1980s में उसने अपना सारा काम छोड़ के एक ब्रोकरेज फर्म में नौकरी पकड़ ली. कुछ दिनों बाद ये काम छोड़ के दूसरे ब्रोकर के पास जॉबर बन गया. 1986 आते आते ही एक्टिवली स्टार्टेड ट्रेडिंग. उसने अपनी सारी मेहनत, सारे लेसन, सारा हार्ड एंड मनी लगा दिया स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल होने में. एंड बाय 1990s लोग उसको स्टॉक मार्केट का अमिताभ बच्चन बुलाने लगे. मीडिया का अटेंशन मिलने के बाद तो सिचुएशन और ग्रैंड हो गई. मीडिया ने हर्षद को एक नाम दे दिया, द बिग बुल. क्वाइट वेल डिजर्व्ड, राइट? क्योंकि लोग मानते थे हर्षद स्टार्टेड द बुल रन ऑफ द स्टॉक मार्केट. लुक एट दिस. एक आर्टिकल है बिजनेस टुडे मैगजीन का जिसका टाइटल है द रेजिंग बुल. 15,000 स्क्वायर फीट का सी फेसिंग पेंट हाउस, मिनी गोल्फ कोर्स, स्विमिंग पूल, इंपोर्टेड कार्स, जो उस टाइम के एलीट भी सिर्फ ड्रीम करते थे लेने की. पिक्चर अब बदल चुकी थी. अब हर्षद मेहता का दौर था. लोग उसकी मानते थे, मार्केट उसकी मानता था, बेयर कार्टेल्स उससे डर के रहते थे. पर गुड डेज वर अबाउट टू चेंज. द मोस्ट सेलिब्रेटेड ब्रोकर जिसके इशारे पे मार्केट नाचने लगा था वॉज अबाउट टू फेस अ डाउनफॉल. Now, apart from understanding his whole life story or taking sides, let's just first understand the data and fact behind this infamous scam of 1992. ये scam majorly 3 parts में divided है. Stamp paper fraud, bank receipts fraud और securities fraud. Early 1990s में बैंक्स को इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करने की परमिशन नहीं थी, तो मेहता ने क्लेवरली बैंक के पैसों को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करवाया. एंड दैट टू विद इन द लिमिट्स ऑफ द लॉ ऑफ दैट टाइम. पैसा पहले बैंक से मेहता के पर्सनल अकाउंट में ट्रांसफर होता था जिससे मेहता वुड बाय शेयर्स. बट वेट, इसमें बैंक का क्या फ़ायदा? बैंक्स को हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट्स मिलते थे. ये सारा पैसा यूज़ करके हर्षद हाइक्ड अप द डिमांड ऑफ सर्टेन शेयर्स जैसे ACC. 1991 में ये स्टॉक 200 पर शेयर पर ट्रेड हो रहा था और 3 महीने के अंदर ये स्टॉक 9,000 पर शेयर पर स्काई रॉकेट कर गया. ही टुक द प्राइस ऑफ ACC फ्रॉम 200 to 9,000. That was an increase of 4,400%. Since he had to book profits in the end, the day he sold was the day when the markets crashed. अब बात आती है बैंक रिसीट फ्रॉड की.
सिक्योरिटीज मूव करती नहीं थी हर ट्रेड पर, बायर या सेलर पे, तो सेलर बायर ऑफ द सिक्योरिटीज को एक बैंक रिसीट दे देता था. द BR सर्व्स एज अ रिसीट फ्रॉम द सेलिंग बैंक एंड ऑल्सो प्रोमिसेस दैट द बायर विल रिसीव द सिक्योरिटीज दे हैव पेड फॉर एट द एंड ऑफ द टर्म्स. अब इस मौके पर हर्षद को बैंक्स चाहिए थे जो फेक BRs इशू कर सके, जिसमें गवर्नमेंट बैकिंग ना हो. BRs जैसे ही इशू हो जाते थे, दे वर मूव टू अनदर बैंक्स जहां से पैसा आ जाता था. और तीसरा और सबसे मेन फ्रॉड था 1992 का सिक्योरिटीज फ्रॉड. ये हर्षद मेहता के साथ साथ कुछ बैंकर्स और क्लब पॉलिटिशियंस ने PSE में कैरी आउट किया था. उस टाइम पर बैंकर्स सिक्योरिटीज दूसरे बैंक्स को बेचने के लिए एक ब्रोकर के पास जाते थे, और क्योंकि हर्षद मेहता एक रेनाउंड ब्रोकर था, बायर बैंक्स चेक हर्षद मेहता के नाम पे ही दे देते थे. बट हर्षद मिसयूज दिस कैश और वो ये सारा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर देता था टू ग्रो हिज ओन पोर्टफोलियो स्टॉक्स. बैंक्स को कानो कान खबर नहीं होती थी कि ये पैसा मिसयूज हो रहा है, क्योंकि हर्षद ने अपनी गुडविल अच्छी बना के रखी थी. यूजिंग हिज इन्फ्लुएंस, हर्षद छोटे बैंक से फेक BRs भी इशू करवा लेता था, जिसकी मदद से वो दूसरे बैंक से अनसिक्योर्ड लोन्स ले सके एंड अगेन उस पैसे को यूज कर सके स्टॉक मार्केट में लगाने में. यूजिंग दिस लूप होल ऑफ द सिस्टम, हर्षद ने कई बैंक्स का पैसा इधर उधर घुमाया और उनको अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए यूज किया. मार्केट को एक टाइम के बाद रियलाइज होने लगा कि कुछ तो गड़बड़ है. ऐसा क्यों? बिकॉज दे स्टार्टेड ऑब्जर्विंग कि हर्षद के बताए हुए सारे स्टॉक्स धीरे धीरे वर्थलेस निकल रहे हैं. इस फ्रॉड के आफ्टर इफेक्ट्स बहुत लंबे होने वाले थे और हर्षद मेहता की कहानी सबके लिए एक एग्जाम्पल बनने वाली थी. 23 अप्रैल 1992 को ये स्कैम लोगों तक पहुंचा वाया जर्नलिस्ट सुचेता दलाल ऑफ टाइम्स ऑफ इंडिया. मार्केट में खबर फैलते ही हर्षद मेहता टर्न फ्रॉम अ हीरो टू अ विलन फॉर एवरीवन. सारे अखबार भरे पड़े थे उन लोगों की खबरों से जिन्होंने अपनी लाइफ लॉन्ग अर्निंग्स इस स्टॉक मार्केट में लगा दी एंड दे वर ब्लेमिंग अ सिंगल इंडिविजुअल, हर्षद शांतिलाल मेहता. बैंकिंग सेक्टर कोलैप्स हो गया क्योंकि कई सारी बैंक्स का पैसा वाया हर्षद स्टॉक मार्केट में लगा हुआ था, विच इज इनडायरेक्टली द पीपल्स मनी. बहुत सारी बैंक्स ने रिकवरी भी डिमांड की पर नहीं मिल पाई. कुछ ऐसी बैंक्स थी जो खुद इस स्कैम में इन्वॉल्व थी और विजया बैंक के चेयरमैन ने तो सैडली सुसाइड कमिट कर लिया. पूरे मार्केट में हैवक मचा हुआ था. पीपल वर ब्लेमिंग द गवर्नमेंट एंड द सिस्टम फॉर दिस क्रैश. बट क्या इस सब का इंपैक्ट हर्षद मेहता पर भी हुआ? यस, he was charged with 72 criminal offenses. उसको स्टॉक मार्केट से बैन कर दिया गया और सितंबर 99 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको 5 साल की इंप्रिजनमेंट की सजा दी. His life behind the bars was not easy. बहुत सारे लोग एलिगेशंस लगाने आए, अलग अलग तरीके के एक्यूजेशंस लगे, फैमिली को बहुत सारा मॉनिटरी लॉस हुआ, अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग तरीके के ऑफेंसिव स्टेटमेंट्स बोल के जाते थे. पूरा देश फैमिली के खिलाफ हो गया था. लेकिन द रियल क्वेश्चन टू आस्क हियर इज, क्या हर्षद इस समय अकेला इन्वॉल्व था? द आंसर इज नो, क्योंकि जब हम डेटा को देखते हैं तो हमें पता चलता है कि सिस्टम ही ऐसा था जिसके लूप होल्स को यूज करके हर्षद मेहता ड्रोव दिस ऑल स्कैम ऑफ 1992. हर्षद मेहता किसी के लिए स्केपगोट होगा, किसी के लिए मसीहा होगा, किसी के लिए फ्रॉड होगा, बट द रियल क्वेश्चन कम्स हियर इज, वाज ही अ स्कैमस्टर और अ क्लेवर बिजनेसमैन जिसने सिस्टम के लूप होल्स को यूज करके अपने बिजनेस और अपनी फैमिली के लिए, अपनी लाइफ के लिए एक बेटर फ्यूचर प्लान किया? सैडली जब 31 दिसंबर 2001 को पूरा देश, पूरी दुनिया न्यू ईयर मना रही थी, तब हर्षद मेहता लॉस्ट हिज लाइफ ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट. अब इसमें भी बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज इन्वॉल्व हैं कि कौन से लोग इसकी डेथ में इन्वॉल्व थे, कौन लोग इसकी डेथ में इन्वॉल्व नहीं थे. डेटा वाइज नथिंग कैन बी प्रूव्ड राइट और रॉन्ग, बट ऑल वी नो इज इस स्कैम के बाद इकोनॉमी ने बहुत अलग मेजर्स लिए, बहुत अलग टर्न्स लिए, जिससे इस ऐसी स्कैम की पॉसिबिलिटीज और संभावनाएं बहुत ज़्यादा आगे जाके कम हो जाए एंड इट रियली हेल्प द इंडियन इकोनॉमी टू ग्रो इन द फ्यूचर. Thank you so much for watching this documentary on Harshad Mehta. We tried our best bringing the complete life of Harshad Mehta as a businessman, as a scamster, as a fraud, as a messiah, for anyone. Do follow this channel and comment for more such documentaries, and thank you so much for watching.